हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था 10th स्टैंडर्ड के लिए। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन एंड दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। और वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था, एक बार फिर से मैं रिकॉल करूंगा। और इसके बाद से इसका जो यूनिट होता है किडनी का, वो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, वो नेफ्रॉन्स कैसे उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ये इस पे डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो दो किडनी से बना है। दीज आर टू किडनीज, टू यूरेटर्स आर देयर, one urinary bladder and one urethra along with renal artery and renal vein. What is this complete process is actually we have to understand here. The waste material along with blood moves into renal artery. The wastage along with blood comes down and it goes to both the kidneys. Both the kidneys receives dirty blood and then the dirty blood is going into both the kidneys and then the dirty blood afterward getting filtered into kidney. Kidney has numerous unit and that unit is called nephron, which is present inside the kidney, and kidney filter the blood. After that the clean blood go into this red color vein is called renal vein. Into renal vein the pure blood goes in and then it circulates to the circulatory system of our body, and the waste material which are trapped here in the kidney by the nephron, that will be releasing out through ureter towards the bag like structure is called urinary bladder, and then the urethra will be the passage by which it will be removed out. So we have to discuss in this video the how the kidney has unit nephron, how they work, what is the structure of the nephron, because remember the diagram I'm going to draw here is very important and this will definitely be the part of the board examination. जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। पहले ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस कप लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ढेर सारे ट्यूब्यूल्स हैं। एक बात याद रखना है बस, ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, दो पार्ट से बने होते हैं। नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है। How the nephron is made up of? Nephron is made up of Bowman's capsule, and this is the first part and this is the second tubule. So many tubules and Bowman's capsule that is made up of, that is responsible for the structure of nephron. तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ऐसे एक ट्यूब है जो थोड़ा सा हैवी है। ये ट्यूब like structure, this is how I have drawn. The simplest way to draw this diagram, and this diagram is really very important for the board examination, and this is called urinary collecting duct, where it has to go to join finally. So it has been joined here. This is Bowman's capsule. Inside it, glomerulus is present. Glomerulus, a very fine capillary which is called glomerulus. The dirty blood is coming with this blue color structure is called afferent. This is called afferent. Glomerulus afferent या afferent भी कह सकते हैं इसको। Afferent, waste blood is coming in. This is called glomerulus.
दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड एफरेंट से ब्लड अंदर आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है, और फिर फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड प्योर हो गया तो वो ब्लड के रास्ते को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल को रेड कलर से दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इफरेंट। This is tubular structure. I have drawn it with red color, means red color is showing that the purity of blood. If the blood is pure, it will be shown with red color, and if the blood is not pure, it will be shown with blue color. So this is pure blood, how it is running into it, and inside it is running, and it goes back to the circulation. So this is called efferent, glomerular efferent. So this is afferent, this is efferent, this is glomerulus, the very fine capillaries. It opens into proximal convoluted tubule is called PCT. Then it is going down to the broader structure, this has been made here, is called loop of Henle, or the Henle's loop of Henle. And this one at the end is called distal convoluted tubule, TCT, and this is the structure of a nephron. So this is the structure of nephron, and in this structure we have to discuss about how a nephron is working for the cleaning of blood, or how a nephron is removing toxic waste from the blood. This is the structure. This structure is made up of, as I have already told you, this nephron is made up of two structures, Bowman's capsule and tubules. The cup-like structure, this complete cup-like structure is called Bowman's capsule. Apostrophe S is this capsule. This Bowman's capsule receives the this Bowman's capsule has glomerulus, the very fine capillaries. Huge number of capillaries are there which are very very fine, which receives the dirty blood from afferent. ऐसे million structure इसमें होते हैं, वो structures इसमें जो डर्टी ब्लड जाता है उसको रिसीव करते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। डर्टी ब्लड एफरेंट के थ्रू पहुंचता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में, और वो ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देता है। जो जब ब्लड प्योर हो जाता है तो प्योर ब्लड इस रेड कलर में एंट्री करता है, जिसको एफरेंट कहते हैं, और यहां से होते हुए वो फिर वापस चला जाता है सर्कुलेशन में, बॉडी सर्कुलेशन में। अब जो वेस्टेज यहाँ पे इकट्ठा हुआ ग्लोमेरुलस में, दैट विल बी मूविंग डाउन इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखो एक कर्ली स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा स्ट्रक्चर है, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये पीसीटी में जाता है और पीसीटी से हेनले लूप में आता है। यहाँ पे जो वाटर इसके साथ जो हमारे लिए हेल्पफुल है वाटर, वो भी रिमूव हो सकता है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ से पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सारे आयंस इससे बाहर इन ट्यूब्यूल से जो वेस्ट मटेरियल से निकल के बाहर आने लगते हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये लॉस नहीं होता है। और लास्ट में डीसीटी तक जाते जाते वो डर्टी ब्लड यहाँ से, डर्टी मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है, इसमें ब्लड तो होता नहीं है, तो वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से होते हुए और फाइनली एक्यूमुलेट हो जाता है इसमें। इसको कहते हैं यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट। ये यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये वेस्ट मटेरियल इससे
एक्यूमुलेट होके और यूरिन ये यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और वहां से बाहर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। सो लेट अस सी अगेन द how urine formation is happening here, or we can say how this complete structure to be drawn, or how the structure work for the excretion in human being। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो किडनी का जो यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन, ये स्ट्रक्चर। अब इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो दो स्ट्रक्चर से बना होता है, एक बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल। बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल से बना ये स्ट्रक्चर है, ये बोमन्स कैप्सूल है, और ये कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस जिसके अंदर होता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ये बोमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, वही फिल्टर करता है ब्लड को। जो गंदा ब्लड है वो एफरेंट से होते हुए इसमें आता है, इसको ग्लोमेरुलर एफरेंट भी कहते हैं। उससे आता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास, ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर कर देता है, ब्लड बिकम प्योर नाउ। वो ब्लड इस रेड कलर का एफरेंट होता है। इम्प्योर है तो उसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया, प्योर हो गया तो इसको मैंने रेड कलर से दिखाया। तो यहाँ से रेड कलर के एफरेंट से निकलते हुए वो ऐसे मूव करते हुए और वो वापस चला जाता है सर्कुलेशन में। दिस गोज टू द सर्कुलेशन, राइट, टू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में चला गया। और सर्कुलेशन जाने के बाद, सर्कुलेशन में जब चला गया तो वो ब्लड को अब फिर वर्क कर रहा है, रीयूटिलाइज कर रहा है ब्लड को बॉडी। और जो इसमें वेस्ट मटेरियल यहाँ पे ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है, वो वेस्ट मटेरियल ठीक नीचे यहाँ आ जाएगा, जो चला आएगा ट्यूब्यूल्स में। दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल्स, इसमें आ गया। एक ट्यूब्यूल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें आता है। फिर वहां से ये ब्रॉडर वाला है, हेनलेज लूप कहते हैं इसको, यहाँ आता है। फिर लास्ट में डीसीटी में आता है, और वो कंप्लीटली उसमें जो कुछ अच्छी चीजें जो हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो यूरिन के थ्रू जा रहा है तो उस यूरिन से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गया, जैसे यहाँ पे वाटर है, सोडियम मॉलिक्यूल है, पोटेशियम मॉलिक्यूल है, वो सब एब्जॉर्ब, नाइट्रोजन है, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंस बचेंगे। थोड़ा सा कुछ प्रोटीन जैसा सब्सटेंस हो सकता है उसमें हो, वो भी बहुत ही कम, 1% से भी कम होगा। और फिर इस तरह क्रिएटिनिन जिसे कहते हैं, आपने शायद सुना होगा। और फिर वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से होते हुए यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करते हुए यूरिन को आएगा, और फाइनली यूरेटर से होते हुए सारा का सारा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और इस रास्ते यूरेथ्रा के रास्ते वो बाहर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक टॉपिक और, कभी कभी दोनों किडनीज फेल हो जाते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में अब उस किडनी का क्या हो सकता है। जब किडनी फेल हो गई तो बॉडी में टॉक्सिकेंस बढ़ते जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ते जाते हैं, तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है। तो एक मशीन आता है जिसको कहते हैं डायलाइजर मशीन। उस डायलाइजर मशीन से आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को क्लीन किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट from body, the blood will taken into a machine is called dialyzer machine and just clean it artificially. So this cleansing of blood by using artificial method with a machine is called dialyzer, is called dialysis. इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार फिर से मैं डायलिसिस बताता हूं। डायलिसिस मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस from blood by using a machine. Dialyzer machine is called dialysis, and this happens only when both the kidneys are getting failed. दोनों के दोनों किडनीज फेल हो गए तो या तो ट्रांसप्लांट होंगे, या तो किडनीज बदले जाएंगे, या आर्टिफिशियली एक मशीन से बार बार बॉडी को फिल्टर किया जाएगा। इसका रेट डिपेंड करता है कि किडनी के खराब होने का परसेंट कितना है, तो उतना। अगर किडनी एकदम से खराब है तो डायलिसिस हर रोज होगा, कभी कभी दिन में भी 2 बार हो सकता है। अगर डायलिसिस 1 महीने पे हो रहा है, इसका मतलब किडनी अभी कुछ काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डायलिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।